اور شروعات بڑی خبر سے کریں گے۔ پاکستان سے بڑی خبر ہے، جہاں جنوب مغربی صوبے بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں ہوئے خودکش حملے میں کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ حملہ سنی شدت پسند تنظیم اہل سنت والجماعت کے ریلی کے قریب ہوا۔ یہ افراد مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پریس کلب کے قریب جمع ہوئے تھے۔ ہلاک ہونے والوں میں پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ اس واقعے میں تقریباً 35 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ دھماکے کے بعد سول اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ ابھی تک کسی بھی تنظیم نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے کوئٹہ میں دھماکے کی شدید مذمت کرتے ہوئے قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ دھماکے کی آواز آئی، میں باہر نکلا اور یہاں پر دیکھا کہ بہت سارے لوگ زخمی پڑے تھے، مدد کی اپیل کر رہے تھے، پکار رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر بہت ساری میں نے لاشیں بھی دیکھی۔ ینگ ایج کا جو ان کی رپورٹ کے مطابق وہ آیا اور اس کو انہوں نے روکا، اور وہ اس کی سچویشن ایسی تھی کہ وہ اس نے رکنے کی بجائے آگے جانے کی کوشش کی، تو اس کو انہوں نے سٹرگل کر کے تو اس کو انہوں نے روکا، گرایا، اور گرتے ہی اس نے اپنے آپ کو وہ ڈیٹونیٹ کر لیا۔ مین روڈ پہ ٹریفک بند کیا ہوا تھا، تو اس سائڈ پہ فورسز کی گاڑیاں کھڑی تھی، بائک بھی کھڑے تھے، تو فورسز کی گاڑیوں کے درمیان بائک پہ ہوا دھماکہ ہوا تو بس ہم بھاگ گئے۔ کراچی میں زہریلی گیس لیک ہونے کی وجہ سے 5 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ متعدد افراد بے ہوش بتائے جاتے ہیں۔ متاثرین کا اسپتال میں علاج کیا جا رہا ہے۔ فی الحال زہریلی گیس کے لیک ہونے کی صحیح وجہ کا پتہ نہیں چل سکا ہے۔ بندرگاہ کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ کراچی میں آج مہلوکین کی تدفین عمل میں آئی۔ یہاں سے کوئی چیز آئی ہوگی، کوئی ہوا میں کوئی چیز کیمیکل میں ملا ہوگا، جس کی وجہ سے ایسا جو ہے نا لوگ افیکٹ ہوئے ہیں، جس میں میرا بیٹا بھی تھا، کیونکہ میں اس کو خود اسپتال لے کے گیا ہوں اور وہ سانس نہیں لے سکتا تھا۔ بس میں جب اسپتال لے کے گیا ہوں، گھنٹہ ڈیڑھ پونے گھنٹہ ان لوگوں نے اپنے وہ کی ہے، لیکن اللہ کو پیارا ہو گیا۔ آنکھوں میں جلن جیسا محسوس ہو رہا تھا، اور کیا نام ہے وہی میرا جو ہے متلی جیسا وہ ہو گیا، اور دھڑکن تیز ہو گیا دل کا۔ بس ایسا وہ جو کہ آدمی گھر میں لیٹے بھی رہتا نا، تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے چارپائی پورا جو ہے نا وہ ہل رہی ہے، اتنا تیز دھڑکن تھا۔ پھر جو ہے میں تو گھر چلے گیا، بس لیٹ گیا، اللہ نے رحم کیا، تھوڑا صحیح ہوا۔ پھر میرے بچے کا بھی طبیعت خراب ہوا، چھوٹا بچہ ہے اتنا۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ افغان امن عمل کے لیے پاکستان نے بھرپور کوششیں کی اور اس مقصد کے لیے پاکستان ہر ممکن سہولت فراہم کرے گا۔ اسلام آباد میں افغان پناہ گزینوں سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ افغان عوام نے 40 برس مشکلات کا سامنا کیا، لہٰذا اب وہ امن کے مستحق ہیں۔ عمران خان نے مزید کہا کہ جب تک پناہ گزین واپس نہیں چلے جاتے، انتہا پسندی کے مکمل خاتمے کی ضمانت دینا ممکن نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گتریز نے افغان پناہ گزینوں کے لیے پاکستان کے اقدام کی ستائش کی۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ افغان پناہ گزینوں پر اسلام آباد میں عالمی کانفرنس کا انعقاد۔ عمران خان نے کہا افغانستان میں امن کے لیے پاکستان کرے گا ہر ممکن تعاون۔ افغانستان میں امن کے لیے پاکستان کی بھرپور کوشش۔ افغان مہاجرین کی 40 برس سے میزبانی پر اسلام آباد میں منعقدہ عالمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ پاکستان نے تمام تر مشکل حالات کے باوجود افغان مہاجرین کی میزبانی جاری رکھی۔ افغان امن عمل کے لیے پاکستان جو کچھ کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں تنازع جاری رہنا پاکستان کے حق میں نہیں ہے۔ ان کے دور حکومت کے دوران افغان امن عمل کے لیے جو ہو سکا وہ کیا گیا۔ عمران خان نے کہا کہ افغان عوام نے 40 برس میں کسی بھی قوم کے مقابلے میں زیادہ مشکلات اٹھائی ہیں اور وہ اب امن کے مستحق ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ وہ افغانستان میں امن چاہتے ہیں۔ دعا ہے کہ افغانستان میں امن مذاکرات کامیاب ہوں۔ اسلام آباد میں افغان پناہ گزینوں سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ان کا ملک افغان سرحد کے ساتھ باڑ لگا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی
जब तक पनागज़ीन वापस नहीं चले जाते इंतहा पसंदी के मुकम्मल खात्मे की ज़मानत देना मुमकिन नहीं। इमरान खान ने मजीद कहा कि वो 27 लाख अफगान पनागज़ीनों की मौजूदगी में ये मुमकिन नहीं कि यहाँ से होने वाली इंतहा पसंदी को रोक सके। उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान काबिल सताइश ताल्लुकात रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान ने लाखों अफगान पनागज़ीनों को यहाँ जगह दी है, बावजूद इसके कि पाकिस्तान गुज़िश्ता कई दहाइयों से माशी बहरान का शिकार रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस और अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे ज़ुल्म खलीलज़ाद भी मौजूद रहे। It is clear that peace among the key Afghan actors is an absolute must in order to fight terrorism effectively. Because it is in a context of conflict that terrorism can spread and terrorism can prevail. And so we believe that if peace is established, if all key actors of Afghanistan come together, then it will be possible to isolate terrorist groups, and it will be possible to have a meaningful international support in order to neutralize any terrorist activities in Afghanistan. तकरीब से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया में मुहाजिरीन का दूसरा बड़ा मेज़बान मुल्क है, जिसने 40 साल से अफगान मुहाजिरीन के लिए अपने दरवाजे खुले रखे हैं। गुतरेस ने पाकिस्तान पहुंचने पर भी अफगान पनागज़ीनों की सूरत हाल पर एक बयान में कहा था कि जनूबी एशियाई मुल्क पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी बरादरी की तरफ से मिलने वाली बहुत महदूद इमदाद के साथ जिस तरह लाखों पनागज़ीनों की मेज़बानी की, ये उसकी सखाफत और काबिल भरोसा होने की मिसाल है। एंटोनियो गुतरेस का कहना था कि पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस और बैनुल अक़वामी बरादरी की महदूद हिमायत के बावजूद इस्लामाबाद ने अफगान मुहाजिरीन को पनाह दी और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस की कश्मीर के मसले पर सालसी की पेशकश को ठुकरा दिया है। हिंदुस्तान ने एक मरतबा फिर अपने पुराने मौक़िफ़ का इयादा करते हुए कहा कि कश्मीर के मसले पर हिंदुस्तान किसी तीसरे फरीक की सालसी को कभी कबूल नहीं करेगा। हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस की जानिब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर पर सालिसी की पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रवीश कुमार का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की तवज्जो पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी और ताकत के जोर पर कब्जा किए गए इलाकों पर होनी चाहिए। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। इस पर हिंदुस्तान की पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं हुई है। रवीश कुमार ने कहा कि अगर कश्मीर के मामले पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कोई मुज़ाकरात होने हैं तो वो बाहमी सतह पर होंगे, किसी तीसरे फरीक को इसमें सालिस बनने की ज़रूरत नहीं है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने ये उम्मीद भी जाहिर की कि हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से होने वाली दहशतगर्दी को रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पर जोर देंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से होने वाली दहशतगर्दी की वजह से जम्मू व कश्मीर और हिंदुस्तान में इंसानी ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हैं। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से ये बयान ऐसे मौके पर सामने आया है जब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने इतवार को पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा महमूद कुरैशी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कश्मीर मसले के हल के लिए सालिसी की पेशकश की थी। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कहा था कि कश्मीर की सूरत हाल पर इन्हें तशवीश है और अगर दोनों मुल्क सालिसी पर रजामंद हो जाएं तो वो मदद के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आगे बढ़ेंगे। ईरान का कहना है कि वो इस बात से अच्छी तरह बाखबर है कि अमेरिका तेहरान के खिलाफ मौजूदा वक्त में जंग नहीं छिड़ेगा। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है कि क्योंकि अगर अमेरिका ईरान के दरमियान जंग हुई तो इससे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को 2020 के सदारती इंतखाबात में नुकसान उठाना पड़ेगा। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है कि हम किसी भी मुल्क के साथ जंग नहीं चाहते। हसन रूहानी ने तेहरान में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि उन्हें पता है कि अमेरिका भी ईरान के साथ जंग नहीं चाहता,
चूँकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अच्छी तरह से जानते हैं कि ईरान के साथ जंग सदारती इंतखाबात में उनकी कामयाबी के इम्कानात को शदीद नुकसानात पहुँचाएगी। हसन रूहानी ने मजीद कहा कि मेरे ख्याल में अमेरिका जंग नहीं चाहता, क्योंकि वो इस बात से बाखबर है कि जंग से उन्हें क्या नुकसान पहुँच सकता है। ईरानी सदर ने मजीद कहा कि जंग अमेरिकी मुफादात और उसके इलाकाई इत्तेहादियों के अलावा ईरान के लिए भी नुकसानदेह होगी। उन्होंने कहा कि अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग हुई तो मुत्तहदा अरब अमारात, बहरीन और कतर जैसे मुमालिक को भी बहुत कुछ खोना पड़ेगा। ما هم مخالف جنگیم. من فکر میکنم آمریکایی‌ها هم دنبال جنگ نیستن. اون علامت‌هایی که ما تا کنون داریم این است، چون آمریکایی‌ها میدونن جنگ چه ضررهایی براشون داره، مخصوصاً که آقای ترامپ همه چیزش دنبال اینه که تو انتخابات بعدی بتونه موفق بشه، بنابراین بر این مبنا داره همه کاراشو طراحی میکنه و میدونه جنگ شانس انتخاباتش رو از بین خواهد برد. ईरानी सदर ने एक मरतबा फिर इस बात का एआदा किया कि अमेरिका के साथ कोई भी मुज़ाकरात उस वक्त ही मुमकिन है जब वो 2015 में तय पाए जौहरी मुआहदे में फिर से शामिल हो। वाज़ेह रहे कि रवां बरस जनवरी में ईरानी पासदारान इनकलाब की कुद्स फोर्स के सरबराह मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की अमेरिकी हमले में हलाकत के बाद वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान कशीदगी अपने उरूज पर जा पहुंची थी। ऐसा लग रहा था कि कहीं दोनों मुल्कों के दरमियान जंग न छिड़ जाए। ईरान ने कासिम सुलेमानी की हलाकत का बदला लेने के लिए इराक में 2 अमेरिकी फौजी अड्डों पर मुतादिद मिसाइल दागे थे। इसके बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ मजीद कोई फौजी कार्रवाई करने की बजाय तेहरान पर मजीद पाबंदियां आयद करने पर ही इत्तेफाक किया था। इराक में अमेरिकी फौजियों की रिहाइशगाह पर मिसाइल हमलों से ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। चलिए आगे बढ़ेंगे। इराक में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे का सिलसिला जारी है। बगदाद के अल खिलाफी स्क्वायर पर मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पें भी हुई हैं, जिनमें मुतादिद अफराद के जख्मी होने की खबर है। मुजाहिरीन के दावों के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए सिक्योरिटी एहलकारों ने रात में इस चौक पर काबिज अफराद से ताल्लुक रखने वाले खेमों को आग लगा दी। वाज़ेह है कि इराक में गुज़िश्ता कई माह से हुकूमत की बदउनवानी, बुनियादी सहूलतों की अदम दस्तियाबी और बेरोजगारी के खिलाफ अवाम एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज के दौरान अब तक 500 अफराद हलाक हो चुके हैं। وطشاريات اولاد صغير ضربة طشاريات كلها هناك اللي قدام ننضرب ونتقدم عليهم ويرجعون نتقدم. لو ما احنا كان هذا النفق يطبون للتحرير. والله البارح حرقوا خيم لنا عالم سلمين، لا عندنا يذي على واحد، لا يعني هاي شوف عينكم انتم. هاي المرة الثانية حرقوها. والله نصابة شادر ذاك اليوم هم حرقوها، صراحة نصابة شادر هم حرقوها مرة ثانية. بس الثالثة ان شاء الله راح نصب شادر واظل هنا لحد ما الوضع ان شاء الله يصير بخير وبلدنا يرجع آمين عن هاي العالم. लीबिया में जंगबंदी के बावजूद हो रहे तसादुम पर यूरोपीय यूनियन ने सख्त तशवीश का इजहार किया। यूरोपीय यूनियन खारजा उमूर और सलामती के सरबराह जोसेफ बोरेल ने कहा कि लीबिया की सूरत हाल इंतहाई संगीन है और खुले तौर पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हो रही है। यूरोपीय यूनियन सिक्योरिटी पॉलिसी के सरबराह ने कहा है कि लीबिया में सीज फायर मुआहिदों के बावजूद लड़ाई अभी भी जारी है और मुल्क में सूरत हाल इंतहाई खराब है। यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारजा के इजलास से खिताब करते हुए यूरोपीय यूनियन उमर ख़ारजा और सलामती के आला नुमाइंदे जोसेफ बोरेल ने कहा है कि लीबिया में जंग बंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हो रही है और लड़ाई जारी है। Well, the ceasefire is still not there, the truce is being violated, the arms embargo also, that the fight continues, but the political process of Berlin is still working. But the situation in the ground is very, very bad. The oil embargo, the oil cut is weakening the economy of this country. They are losing about $60 million a day by the oil that they cannot sell. Can you imagine? The whole European Union helped Libya 600 million euros. इन्होंने मजीद कहा कि मुल्क में जारी लड़ाई और नाकेबंदी के नतीजे में लीबिया से तेल की बरामदात में कटौती ने इसकी मईशत को कमजोर कर दिया है।
बोरेल का तखमीना है कि इस मुल्क को एक दिन में तकरीबन 60 मिलियन अमरीकी डॉलर का खसारा हो रहा है। इतवार के रोज जर्मनी में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में 1 दर्जन के करीब ममालिक के वज़ीर खारजा और दीगर आला ओहदेदारों की कॉन्फ्रेंस के बाद बोरेल का यह तबसरा सामने आया है। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर बातचीत के दौरान जर्मनी के वज़ीर खारजा हाइको मास ने यूरोपीय यूनियन के मिशन पर जोर दिया था कि वो लीबिया में हथियारों पर आयद पाबंदी पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता माह बर्लिन की कॉन्फ्रेंस में 16 ममालिक और तंजीमों ने लीबिया की मौजूदा खाना जंगी में बैरूनी मदाखलत से बाज रहने पर इत्तेफाक किया था। इसके तहत जंगबंदी के साथ साथ हथियारों की फराहमी पर भी पाबंदी आयद करने पर इत्तेफाक हुआ था और कहा गया था कि तमाम मुतहरिब धड़ों में बातचीत जारी रहनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने लीबिया में जंग के खात्मे के लिए 55 नुकात पर मुश्तमिल एक रोड मैप की सिफारिश करते हुए तशद्दुद में इजाफे की मजम्मत की थी। इदारे ने इससे मुतालिक अपनी एक प्रेस रिलीज में कहा था कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र इस बरस लीबिया के तकरीबन 9 लाख बाशिंदों को इंसानी इमदाद की ज़रूरत पड़ सकती है। ख्याल रहे कि लीबिया 2011 में अरसे तक इक़्तिदार में रहने वाले डिक्टेटर मुअम्मर क़ज़ाफ़ी के खिलाफ अवामी बगावत और उनकी हलाकत के बाद से मुसलसल खाना जंगी का शिकार है। वहाँ इलाकाई सतह पर बरसर इक़्तिदार 2 बड़े हरीफ धड़े पूरे मुल्क पर अपने इक़्तिदार के लिए जंग लड़ रहे हैं। एक तरफ लीबिया की बैन अल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा हुकूमत है और दूसरी जानिब खलीफा हफ्तर का ग्रुप है जो कई इलाकों पर काबिज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से शामी सदर बशारुल असद की हिमायत खत्म करने का मुतालबा किया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप ने अपने तुर्क हममनसब रजब तैयब एर्दोगान के साथ टेलीफोन पर बात करते हुए शाम में जारी तशद्दुद पर तशवीश का इजहार किया है। अमरीकी सदर ने इस मौके पर शामी खाना जंगी के खात्मे के लिए एक सियासी हल की हिमायत भी की। सुबह इदलिब में शामी दस्तों और तुर्क फौज के माबैन अभी हाल ही में इश्तियाल अंगेजी का खतरा बढ़ गया था। इस सिलसिले में तुर्की और रूस के दरमियान मशावरत जारी है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने जानकारी दी है कि युगांडा में एक इजरायली तैयारे ने सूडान पर तारीखी पहली परवाज की। यह परवाज अरब रियासत के रहनुमा के साथ मुलाकात के सिर्फ 2 हफ्तों के बाद अमल में आई। और अब बात करेंगे कोरोना वायरस के कहर की। चीन में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। इस मौलिक वबा पर काबू पाने की तमाम तर कोशिशों के बावजूद हलाकतों का सिलसिला लगातार जारी है। कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 1800 से तजावुज कर गई है। चीन में कोरोना वायरस से हलाकतों का सिलसिला है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। चीन में कोरोना वायरस से मजीद 105 अफराद हलाक हुए हैं। चीन के कौमी कमीशन बराए सेहत के मुताबिक अब इस वायरस की जद में आकर मरने वालों की तादाद 1800 से तजावुज कर गई है, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद भी 70,000 से ज्यादा हो चुकी है। चीनी हेल्थ कमीशन के मुताबिक सूबा हुबाई में कायम सेंटर से मजीद 100 हलाकतें रिपोर्ट हुई, जबकि मुल्क भर में 2048 अफराद के मजीद वायरस से मुतासर होने की भी तस्दीक हो गई है, जिनमें से सिर्फ 1933 अफराद का ताल्लुक हुबाई से है। हुबाई के हुक्काम ने वायरस पर काबू पाने के लिए मजीद इक़दाम किए हैं, जिनके तहत शहरों की सड़कें बंद कर दी गई हैं, जबकि निजी गाड़ियों की आमदरफ्त भी रोक दी गई है। ताइवान में भी हुकूमत ने कोरोना वायरस से पहली हलाकत की तस्दीक कर दी है। इससे पहले हांगकांग, फिलिपाइन और फ्रांस में भी कोरोना वायरस से एक हलाकत हो चुकी है। दूसरी जानिब अमेरिका ने जापान की डायमंड प्रिंसेस शिप से 1 हफ्ते से अलहदगी में मौजूद अपने शहरियों को निकाल लिया है। अमेरिकी महकमा सेहत के उहदेदारान के मुताबिक 40 अमेरिकी शहरियों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है, जो कि इलाज और मुआलजे तक जापान में ही रहेंगे। फिलिपाइन की वजारत खारजा के मुताबिक जापान की शिप में मौजूद मजीद 27 फिलिपाइनी शहरियों में इस वायरस की तस्दीक हो चुकी है। आलमी इदारा सेहत के माहिरीन की टीम बीजिंग में है। माहिरीन की टीम चीनी हुक्काम के साथ गौर खौज में लगी हुई है कि किस तरह इस मुहलिक वबा पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। वायरल इन्फेक्शन के अलावा अब कोरोना वायरस के खौफ का असर बाजार पर भी नजर आ रहा है। खासतौर पर वायरल इन्फेक्शन से बचने के इस्तेमाल होने वाले मास्क बाजार से गायब हो गए हैं। हिंदुस्तान में एनसीआर इलाके में दवाओं के बड़े बाजार में शुमार मेरठ के खैर नगर दवा बाजार से लेकर शहर और अतराफ के शहरों की दुकानों में भी मास्क खत्म हो गए हैं और अब इनका असर घरेलू जरूरतों पर भी पड़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए।
सप्लायरों के दवाओं और सर्जिकल सामान की दुनिया भर के मुल्कों में सप्लाई करने वाला मुल्क चीन अब खुद ही दवाओं और मास्क की अदम दस्तयाबी से दो चार है। चीन में कोरोना वायरस के कहर का असर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर पड़ा है और अब हाल ये है कि चीन और मगरबी एशियाई मुल्कों में मास्क की कमी हो गई है। दवा सप्लायरों के मुताबिक चीन अब हिंदुस्तान जैसे मुल्कों से बड़ी तादाद में मास्क इंपोर्ट कर रहा है और इसका सीधा असर यहाँ की लोकल मार्केट पर पड़ रहा है। सर्जिकल सामान के होलसेल और रिटेल कारोबारियों की दुकानों में मास्क खत्म हो गए हैं और सप्लाई बंद हो गई है। जो कोरोना वायरस चल रहा है चाइना में, उसकी वजह से लोगों में दहशत है और चाइना और इंडोनेशिया, मलेशिया, हांगकांग, बैंकॉक, वहाँ से डिमांड आ रही है और ये वहीं जो एक्सपोर्टर है वो सप्लाई कर रहे हैं और वही इकट्ठे करवा रहे हैं। यहाँ पे जो जगह जगह वही ढूंढते फिर रहे हैं कि किसी भाव को भी मिल जाए वो खरीद लेते हैं और वो एक्सपोर्ट करते हैं। जो डायरेक्ट सप्लाई होती थी कंपनियों से, जिन लोगों का ये व्यापार है, तो उन लोगों ने डायरेक्ट सप्लाई करनी शुरू कर दी है और जिसमें मैं समझता हूँ इससे जो है मास्क की हमारे पूरे मेरठ में शॉर्ट हो चुका है, पूरे उत्तर प्रदेश में शॉर्ट हो चुका है। और ये जब जो है डायरेक्ट सप्लाई कर रहे हैं तो हमारे जो मेडिसिन कुछ होती हैं, अब सुनने में आ रहा है कि मेडिसिन भी कुछ शॉर्ट हो सकती हैं। लोकल मार्केट में मास्क की कमी का असर मेडिकल सर्विसेज पर भी पड़ रहा है। दवा कारोबारी तंजीमों के जिम्मेदारान के मुताबिक ज्यादा मुनाफा हासिल करने की नीयत से मास्क सप्लायर का ध्यान महज एक्सपोर्ट करने पर ही मरकूज है। 100% शॉर्ट हो जा सकती है क्योंकि इतना स्टॉक रखा नहीं जाता इन चीज़ों का और जब ये हर जगह यूज़ होता है और आजकल तो ये चीज़ मस्ट हो चुकी है। दिक्कतें काफ़ी सामना करना पड़ेगा कि जो लोग जो हैं, जो डॉक्टर्स लोग होते हैं, उनको भी दिक्कत आ सकती है, जो पेशेंट होता है उसको भी दिक्कत आ सकती है। अगर ऐसा करते रहेंगे, जो हमारी मेडिकल लाइन स्थिति है, जो हमारे मेडिकल हैं, हॉस्पिटल वगैरह हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। आए दिन ऑपरेशन होते हैं, दिन में कई ऑपरेशन होते हैं, उसमें हर ऑपरेशन में हर मास्क पहना जाता है, मरीज से मिलने जाना पड़ता है तो मास्क चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए हमारे अपने देश में भी ज़्यादा आवश्यकता इसकी पड़ रही है। कोरोना वायरस के खतरे और खौफ के बाद मास्क की जरूरत का असर मांग और सप्लाई पर नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में यह खतरा दवाओं की सप्लाई में कमी को लेकर भी नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मीरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बर्री फौज में खवातीन को भी मर्द अफसरान के मसावी इख्तियारात और मुस्तकिल कमीशन देने का हुक्म दिया। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस अजय रस्तोगी की बेंच ने कहा कि खवातीन की जिस्मानी खुसूसियात का इनके इख्तियारात से कोई ताल्लुक नहीं है और इनके हवाले से दकियानूसी जहनियत को बदलने की जरूरत है। हुकूमती मौक़िफ़ था कि मर्द फौजियों की अभी तक खवातीन को कमांडर के रूप में तस्लीम करने की तरबियत ही नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को 3 माह के अंदर फैसला नाफिज करने का हुक्म दिया है। This is very, very significant because these lady officers are the officers who are creme la creme when it comes to the powers of human beings, intellectual powers, physical strength. I mean, they have shown their might, and had they not been that qualified, they would not have been accepted by the army in the first place. And after proving themselves, not once but repeatedly, a denial of particular progression was something which is inherently unequal and unjust, which the court has kind of leveled it for all.